Namaskar students. In this video I am going to demonstrate program to search record in the binary file. After a long time I am uploading video for class 12 computer science because of some other problems. So now I will give you the regular video at the regular interval. So now let me see the steps how you can do this task in easy steps. So first of all you have to open the file in read mode using RB mode. Then prompt a message to ask unique field from data to search. The third step is declare a variable to store 0 for record not found and 1 when record found. Assign 0 when record not found and assign 1 when the record found. The fourth step, use try except for the exception handling. Fifth step, use a while loop for reading the file contents. Now load the data into data log variable using load function. Then take for loop to check the record is available or not in the file. Use if condition to compare the data with the variable taken in step 2 for the search. After that, the 8th step is print found. 9th step, assign 1 to the variable declare in step 3. And last step is there. Now again to provide a message, use if condition for printing a message, the record found or not. So these simple 10 steps you can search a record from the binary file. So in this video I am going to show you the practical program how to do this 10 steps easily with the coding Python. So let me begin this video. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel Tutorial AICS IP. For the same content, if you are new to my channel, watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon for the regular and easy contents. So here we start. So let me open Python. I have already opened over here. Now let me open one program that is reading the binary file. So I have already demonstrated in earlier programs. So that only I am going to open. Okay, YT read. Okay, so here I have one file that is stud.dat. Here I am just displaying the contents of the file. So let me check what are the contents in this file. So here you can see the data stored in files are like this. So there are 1, 2, 3, 4, 5 records. So these 5 records are there. Now we are going to search a particular record using the code. So let me open a new file and we are simply following the steps which I have explained there. So let me begin. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो प्रोग्राम है उसको हम सिंपली यहाँ 10 स्टेप जो मैंने बताए हैं उसी 10 स्टेप को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे. एक बार हिंदी में मैं समझा देता हूँ कि क्या स्टेप्स है ये. सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फाइल को रीड मोड से ओपन करना पड़ेगा. वो ऑब्वियस है कि जब भी आप काम करते हैं डेटा रीड ही होता है, तो उसको हम रीडिंग करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे आरबी मोड. सेकंड स्टेप है, उसके बाद हम पूछेंगे एक मैसेज जो डेटा सर्च करने के लिए हमें एंटर करवाना है यूजर से कीबोर्ड के थ्रू. तो वो इनपुट इंटीजर वाला सिंपल जो फंक्शन हम डालते हैं वही यहाँ पे लेंगे. थर्ड स्टेप है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे 0 इनिशियली और जब हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो वो हो जाएगा 1. स्टेप नंबर 4 है ट्राई एक्सेप्ट. हम यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए और आप जानते हैं कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. और नहीं करते हैं तो क्या होता है वो भी आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा कि ट्राई एक्सेप्ट हमने क्यों लिखा और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है बाइनरी फाइल के साथ. 5वां स्टेप है यूज अ व्हाइल लूप फॉर रीडिंग द फाइल. फिर फाइल को रीड करने के लिए हम व्हाइल लूप यूज करेंगे. उसके अंदर फिर डेटा जो हमने लिया है उसको एक लॉग वेरिएबल में यहाँ पे लोड फंक्शन के द्वारा लोड कराएंगे. वो जो डेटा लोड हो जाएगा रीड करेंगे. उसके बाद हम एक और फॉर लूप लेंगे जिसमें हम डेटा के अंदर जो कंटेंट आएगा उस कंटेंट को जो लिस्ट सब लिस्ट हम यूज करते थे उसी टाइप से नेस्टेड लिस्ट यूज करते थे, उसी को हम इसमें कंपेयर करेंगे उस वेरिएबल के साथ जो हमने स्टेप 2 में यहाँ पे डिक्लेयर किया था और यूजर से इनपुट लिया था. उसके बाद का स्टेप जो आएगा वो स्टेप है जो भी रिकॉर्ड हमें मिलेगा उसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद स्टेप 9 है, उसको जो वेरिएबल हमने स्टेप 3 में लिया है उसको हम असाइन कर देंगे 1. तो जब रिकॉर्ड मिलेगा तो वो हो जाएगा 1, नहीं मिलेगा तो इनबिल्ट जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू है 0 वो उसमें चली जाएगी. तो वो मैसेज हम उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में प्रिंट करने वाले
है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है बाइनरी फाइल में सर्च करने का। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे def bin अंडरस्कोर सर्च। इस फंक्शन में सबसे पहले मैंने जैसे बताया था रीड मोड में फाइल को ओपन कर लीजिए आप, f इक्वल टू ओपन, और फाइल का नाम जैसे ही अभी हमने देखा std.dat है। तो ये हमारा है डेटा फाइल और मोड हम स्पेसिफाई करेंगे RB। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज वी आर डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल टू सर्च द रिकॉर्ड। सो विच रिकॉर्ड वी आर गोइंग टू सर्च, हमें कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है। तो यहाँ यूनिक जिसमें वैल्यू हमें लग रही हो ऐसा रिकॉर्ड हम सर्च कर सकते हैं। आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वही यूज करें, बट वही इसलिए यूज करते हैं कि सर्च और अपडेट और डिलीट, तो उसमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च और अपडेट हो। सो फॉर दैट रीजन हियर आई एम टेकिंग रोल नंबर टू सर्च। यू कैन टेक एनी लाइक नेम, marks you cannot, otherwise so many records will come because the same marks may students get. Okay, so that's why we cannot take marks. So here simply roll number, I am taking a short form of it, rn integer input, then here we will write the message, enter roll number to search record. Okay, now the next step we are taking one variable. So write here the variable name. F we have already used, that's why let me take tf equal to 0. So initially we are declaring 0. Now what we are doing, we are going to read the file. So फाइल रीड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं। तो आप यही फॉलो करिए जो मैं लिखता हूं यहाँ पे कोड, ट्राई उसके बाद तुरंत ही एक्सेप्ट लिख दीजिए। हम सब क्या करते हैं कि पहले अंदर का कोड लिखने जाते हैं फिर बाद में जो चीज है वो लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। ट्राई एक्सेप्ट एक साथ ही आ जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दैट्स वाई here I am writing f.close। तो यहां पे एक्सेप्शन में हमने लिख दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। नाउ while लूप विल बी यूज्ड। हम while लूप यहां पे लेंगे डेटा को चेक करने के लिए, while true then now load the data। so for that we are taking one variable। तो वेरिएबल यहां पे मैं ले लेता हूं कि चलिए डेटा ले लेते हैं। डेटा हम लोड कर रहे हैं तो डेटा ही लेंगे। f pickle, now the role of pickle is coming, pickle dot load। तो हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है तो अब इंपोर्ट करेंगे। मेरा ये पहले से ही स्टाइल रहा है कि जब हम फंक्शन यूज करेंगे उसी टाइम पैकेज को लेंगे, अदरवाइज पहले से लिखने का कोई जरूरत नहीं रहता। इंपोर्ट पिकल, अदरवाइज वो क्या होगा कि एक आप प्रोग्राम रट्टा मार के आए हैं और सीधा आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, वही चीज होती है यहाँ पे। तो इसलिए इंपोर्ट पिकल जो है वो सबसे जब जरूरत पड़ती है तभी हम डालेंगे। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ लोड फंक्शन पिकल से लिया है, तो इसलिए पैकेज पिकल यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में करेंगे, डेटा हमारे पास आ गया है, अगर हम यहाँ यूज कर लेंगे प्रिंट तो वो पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा, जो लिस्ट अभी हो हमें मिलती है उस डेटा फाइल से। तो उसको अभी नेक्स्ट स्टेप में लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक और लूप लेते हैं जो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर आई इन डेटा। ये सिंपल लिस्ट का कंसेप्ट है जो आप क्लास 11th में सीख के आए हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप वहां जाकर भी लिस्ट के बारे में भी देख सकते हैं। सारे फंक्शन और सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है इजी वे में। अब देखिए यहाँ पे ये डेटा हमें मिल गया फॉर लूप का। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर लूप में जो डेटा लोड हो रहा है तो हम कंपेयर करेंगे कि जो अभी i0 में रिकॉर्ड है उसमें क्या rn हमें मिल रहा है, क्या रोल नंबर के इक्वल है वो। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इफ i of 0 इक्वल्स rn। अगर इक्वल है तो हम सीधा tf को अपडेट करेंगे, tf इक्वल टू 1, और यहां प्रिंट कर देते हैं जो भी वैल्यू हमारे पास है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, नेम। सो फर्स्ट इज स्टूडेंट नेम
और उसके बाद में यहाँ पे I of 1 प्रिंट करेंगे, तो जिसमें स्टूडेंट नेम प्रिंट होगा। सेकंड हमारे पास है मार्क्स, सो प्रिंट मार्क्स I of 2। तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे हो चुका है और हमने प्रिंट भी कर दिया है। उसके बाद आप ब्रेक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है, जितने रिकॉर्ड है उतने सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे इसी रोल नंबर से। तो इसलिए यहाँ पे अब सीधा एक मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, इफ RN इक्वल्स 0, ये इनिशियल 0 लिया है इसलिए मैंने पहले ये कंडीशन डाला। अभी थोड़ा मैं सी लैंग्वेज का कर रहा हूं तो प्रिंट एफ याद आ जाता है। ओके, प्रिंट record found, okay, after that else print record not found, print record found, सॉरी ऊपर गलती से लिख दिया, 0 पे not found होना चाहिए। So here we have completed our all 10 steps. Now we are going to call the function binary search. Now let me save this program. Let me save in that folder only because our file is there. D drive Python binary codes, और यहाँ पे लिख देते हैं search in binary. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें मैसेज जनरेट कर दिया है इसने। चलिए ढूंढते हैं रोल नंबर 102 को, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिकॉर्ड फाउंड 185, तो 102 है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा 102 185। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है। चलिए एक बार और रन करते हैं और जो रिकॉर्ड रिपीट हुआ है इसे हम प्रिंट करते हैं कि 2 बार आता है कि नहीं। ये जैसे 101 आप देख पा रहे हैं, मैंने 2 बार यहाँ पे इनपुट कर दिया है, तो एक में 35 मार्क्स है, दूसरे में 63 है। 101, तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही मैंने ऐसा रिकॉर्ड जानबूझ के रखा है, ताकि आपको भी पता चले कि टोटल जितने रिकॉर्ड है उतने आते हैं या नहीं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो नेम रिपीट है 2 बार आ गया है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे अलग अलग है। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है और आप कुछ लर्न कर पाए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और इनको भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ऐसे कंटेंट हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट योर व्यूज always, because we are watching the videos but we are not trying to share your our feedback. So those feedbacks are required to improve the content and provide the more quality content. So I request you to type your comments as token of love. Thank you very much for watching this video.